দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন উচ্চতায় নিতে দীর্ঘমেয়াদী এক মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন সরকার। নির্বাচনী ইশতেহারের অংশ হিসেবে দেশের যোগাযোগ খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে 3টি বড় অবকাঠামো প্রকল্প, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশ अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्पेन है, आप देख रहे हैं स्पेन एक्सेस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने $100 बिलियन का मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। यहाँ पे जी पूरा का पूरा रोड मैप रिवील कर दिया है, जिससे बांग्लादेश पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बांग्लादेश पूरा का पूरा बदलने जा रहा है। इस गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान जो है उसको रिवील कर दिया है। इस मास्टर प्लान में बांग्लादेश की पूरा का पूरा जो रोड्स का मैप है उसको बदल दिया जाएगा, ताकि बांग्लादेश में ट्रैफिक का जो मसला है उसको हल किया जा सके। साथ ही यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो पद्मा ब्रिज होने जा रहे हैं। अब एक पद्मा ब्रिज से भी लंबा ब्रिज बनने जा रहा है जमुना के ऊपर, और इस ब्रिज को बनाने का मेन मकसद ये है कि ताकि एक ब्रिज से जो ट्रैफिक है उसको डिवाइड किया जा सके और जो बर्डन है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाया जा सके। तो यहाँ पे जो और भी एरियाज़ हैं उनको इस ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। मतलब जो सफ़र आप घंटों में कर रहे थे वो आप मिनटों में कर सकेंगे। अब ये रोड मैप क्या है, ये मास्टर प्लान क्या है, अभी आप लोग सारी पोस्ट शेयर करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते हैं, দেখতে हैं ভিডিও। পদ্মা সেতুর সফলতার পর এবার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরো বড় চমক নিয়ে আসছে সরকার। দীর্ঘমেয়াদী এক মহাপরিকল্পনার আওতায় দেশের 3 প্রান্তে নির্মিত হতে যাচ্ছে 3টি বিশাল অবকাঠামো প্রকল্প। তবে 12,59,000 কোটি টাকার এই বিশাল বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে, বিস্তারিত জানাচ্ছেন ত্রিবেণী তনু। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন উচ্চতায় নিতে দীর্ঘমেয়াদী এক মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন সরকার। নির্বাচনী ইশতেহারের অংশ হিসেবে দেশের যোগাযোগ খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে 3টি বড় অবকাঠামো প্রকল্প, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের সড়ক যোগাযোগ, পণ্য পরিবহন এবং আঞ্চলিক সংযোগে আমূল পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সেতু বিভাগের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী পদ্মা সেতুর আদলে আরও একটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়াকে যুক্ত করবে। প্রায় 4.9 কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রস্তাবিত সেতুটি রাজধানীর সঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ আরও সহজ করবে। এর ফলে বেনাপোল স্থলবন্দর ও মোংলা সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থার সময় ও খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নোভা এলইডি টিভি, ঝকঝকে ছবি, নিখুঁত শব্দ, 5 বছরের ওয়ারেন্টি। নোভা মানি সঠিক মান, নিশ্চিত সেবা। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার যমুনা সেতুর উপর চাপ কমাতে বিকল্প সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে সেতুর সংযোগ সড়ক 6 লেনে উন্নীত হলেও মূল সেতুটি 4 লেনের হওয়ায় দীর্ঘ যানজট এখনও নিত্য নৈমিত্তিক। এই সংকট কাটাতে 2033 সালের মধ্যে যমুনার উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে চলছে সম্ভাব্যতা যাচাই। সম্ভাব্য রুট হিসেবে রয়েছে বগুড়া জামালপুর কিংবা গাইবান্ধা দেওয়ানগঞ্জ করিডোর। মেগা প্রজেক্টের এই তালিকায় সবশেষ সংযোজন ঢাকা চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে। দেশের প্রধান বাণিজ্যিক এই করিডোরে প্রতিদিন 30,000-এর বেশি যানবাহন চলে। এই চাপ সামলাতে একটি আধুনিক উড়াল সড়ক বা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা করছে সেতু বিভাগ। কর্মকর্তারা জানান, আমদানি রপ্তানি ও পণ্য পরিবহনে গতি আনতে এই এক্সপ্রেসওয়েকে দেশের পূর্ব পশ্চিমের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এই লক্ষ্যে এটিকে আউটার রিং সার্কুলারের মাধ্যমে মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার মাস্টার প্ল্যানও সরকারের রয়েছে। 1 মার্চ সেতু বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের নথি থেকে এই 3 মেগা প্রজেক্টের তথ্য পাওয়া গিয়েছে।
2026-27 অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং পরবর্তী দুটি অর্থ বছরের সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রক্ষেপণ নিয়ে আয়োজিত ওই বৈঠকে এই বৃহৎ প্রকল্পগুলোর সময়সীমা ও রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ভবিষ্যতের এই নতুন মেগা প্রজেক্টগুলোর জন্যই 12,59,925 কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ধাপে ধাপে সম্ভাব্যতা যাচাই, নকশা প্রণয়ন এবং অর্থায়নে নিশ্চিত করা হবে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে আগামী 1 দশকের মধ্যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় দৃশ্যমান বড় পরিবর্তন আসবে। ত্রিবেণী তনু, ATN নিউজ। ओके जी, और ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी एक दूसरा पद्मा ब्रिज बनने वाला है, एक दूसरा और ब्रिज बनने वाला है, दैट इज जमुना पे दूसरा पुल बनने वाला है। और इस पुल को यूज़ किया जाएगा ताकि जो ट्रैफिक है उसको कम किया जा सके। जमुना ठीक है, ब्रिज पर ट्रैफिक जो है उसको कम किया जा सके। तो यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा जैम रहती है, क्योंकि यहाँ तो रोड तो यहाँ पे 6 लेन है, लेकिन यहाँ पे जो असल ब्रिज है, जो मेन ब्रिज है, वो 4 लेन है। ठीक है, सो 2030 तक ये जो नया ब्रिज है उसको ठीक है लाइक कंस्ट्रक्शन इसकी की जाएगी और इसको जल्द से जल्द जो है ओपन किया जाएगा। और इसकी जो रूट्स हैं उनको भी डिसाइड कर लिया गया है। यहाँ पे एक और पद्मा ब्रिज बनने जा रहा है। पद्मा ब्रिज की कामयाबी के बाद दिस गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड एन अदर पुद्दा सेतु, ताकि जो ट्रैफिक जो है कॉन्टिन्यूसली एक ही ब्रिज के ऊपर जा रही है उसको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेके जाया जा सके और जो ट्रैफिक है यहाँ पे अगेन कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे स्पेशली जो लोग ठीक है जिनको थोड़ा सा भी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था, उनका ट्रैवल जो है ट्रैवल टाइमिंग उनकी कम हो सकेगी और वो अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच सकेंगे। और यहाँ पे जी जो एक्सप्रेस हाईवे है ढाका टू चित्तौड़गोंग वो बनाया जाएगा। यहाँ पे मावा एक्सप्रेस वे जैसे पहले बनाया गया, लेकिन अब ये एक्सप्रेस वे बहुत बड़ा है, बहुत तवील है। ढाका टू चित्तौड़गोंग जाने में बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ती थी, एंड देयर इज़ नॉट एज सच प्रॉपर रोड टू गो टू चित्तौड़गोंग। लाइक जो रास्ते हैं वो बहुत नैरो हैं। सो यहाँ पे अब ये एक्सप्रेस वे जो है वो बिल्ड किया जाएगा और चित्तौड़गोंग का सफ़र जो है उसको बहुत ज़्यादा उसकी टाइमिंग को कम कर दिया जाएगा। मतलब जो सफ़र आप पहले 2-3 घंटे लग रहे थे, अब आप 1-1.5 घंटे के अंदर ही आप वो कर सकेंगे। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, इस मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा 2029, 2030, 2032 तक लाजमी इसको कंप्लीट किया जाएगा। और ये बांग्लादेश के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किस्म का प्रोजेक्ट जो है, बहुत लाइफ चेंजिंग किस्म का प्रोजेक्ट जो है साबित होने वाला है। आप लोग क्या कहेंगे लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को प्लीज़ लाजमी एक बार लाइक किया करें। आप लोग मेरी वीडियो लाइक करते हैं तभी मेरी वीडियो सजेशंस में जाती है, अदरवाइज़ यूट्यूब उसको आगे नहीं रेकमेंड करता। So please make sure to like my video and watch it full. I will see you till then. Take care.